Good morning, everybody. Good morning, sir. So we're on process costing, and today seems that we'll finish this chapter. Hope so. अब इसमें जो पार्ट हमारा बाकी रहा हुआ है, that is your when one process makes the transfer to other process by adding profit, where that each process is considered as separate profit center. मतलब जब एक प्रोसेस अगले प्रोसेस को प्रोसेस ए विल मेक द ट्रांसफर टू प्रोसेस बी, इन दैट केस प्रोसेस बी विल बी ट्रीटेड एज अ कस्टमर ऑफ प्रोसेस ए. जब प्रोसेस बी प्रोसेस सी को ट्रांसफर करेगा, सो इन दैट केस प्रोसेस सी इज नथिंग बट अ कस्टमर फॉर प्रोसेस बी. सो इन दिस केस ईच प्रोसेस विल एड इट्स ओन प्रॉफिट. So when the process will add its own profit and then will transfer the another process, in that case how you will prepare these process accounts that we are going to discuss. Fortunately इस तरह के प्रॉब्लम में फिर आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग डिग्री ऑफ कंप्लीशन एंड दैट परसेंटेज वगैरह जो कुछ है वो नॉर्मल इस केस में नहीं आता. यहाँ पर आपको स्ट्रेट वे आपको अकाउंट्स करने होंगे. ठीक है. सो लेट्स कम टू प्रॉब्लम नंबर 32. अब जस्ट अपने नोटबुक में हेडिंग देते हैं इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट ये वाला इशू हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इंटर प्रोसेस प्रॉफिट. आइए प्रॉब्लम नंबर 32 पर. कल का मुझे याद है होमवर्क है कौन सा था नंबर 29 एंड 31. और पहले के दो क्वेश्चन थे शायद से कुछ 4 एंड 36 ना. ओके चेक करेंगे हम लोग बाद में. कम टू नंबर 32. A product passes through three processes X, Y and Z. The output of process X and Y is transferred to next process at cost plus 20% each on transfer price. Cost plus 20% each, and the output of process Z is transferred to finished stock at a profit of 25% on transfer price. The following information is available in respect of the year ending 31st March 2008. Process X, Y, Z and finished stock. Opening stock is given to you 15,000, 27,000, 40,000 and 45,000. Material 80,000, 65,000, 50,000. Wages 1,25,000, 1,08,000 and 92,000. Manufacturing overheads 96,000, 72,000, 66,500. Closing stock 20,000, 32,000, 39,000, 50,000. Inter-process profit included in opening stock nil, 4,000, 10,000, 20,000. Stock in process is valued at prime cost. Stock in process is valued at prime cost. The finished stock is valued at the price at which it is received from process Z. Sales of the finished stock during the period was rupees 14 lakh. You are required to prepare process account and finished stock account showing profit element at each stage. Profit and loss account and show the relevant items in the balance sheet. November 2008, 12 marks. Okay. So what is given to you? एक बार just पढ़ लेते हैं. There are three process and one is finished stock account. सबके opening stock, material, wages, manufacturing overheads, closing stock. The profit included in the opening stock is given to you. Read it right from beginning again. A product passes through three process X, Y and Z. The output of process X and Y is transferred to next process at cost plus 20%. At cost plus 20% each on transfer price. And the output of Z transfer to finished stock at 25% on transfer price. अच्छा इसमें करेक्शन कर ले आप लोग. The output of process X and Y is transferred to next process at के बाद जो cost plus है ना वो निकाल दे. तो क्या हो रहा है ना कि 20% on cost भी हो रहा है, 20% transfer price भी हो रहा है. So क्या होता है ना आपको, the output of process X and Y is transferred to next process at cost plus जो है ना 20 के पहले जो cost plus है आप उसको कैंसिल कर दें. So final wording ये बचेगी,
The output of process X and Y is transferred to next process at 20% each on transfer price. So your profit is 20% on transfer price. It means 25% on cost. So X and Y will transfer at a profit of 25% on cost. मतलब भी 20% on transfer price. And output of Z is transferred to finished stock at a profit of 25% on transfer price. Again 25% on transfer price जब transfer होगा, इसी का मतलब 33.33% on cost. ठीक है, बस कुछ नहीं है यहाँ पर. हर प्रोसेस अगले प्रोसेस को जब ट्रांसफर करेगा तो इट विल ट्रांसफर एट सम प्रॉफिट. ठीक है, इंडिविजुअल प्रोसेस बीच में कहीं पर भी कुछ भी सेल नहीं करेगी. मतलब कल जैसे हमने प्रॉब्लम देखा था ना, दैट प्रोसेस ए एंड प्रोसेस बी, प्रोसेस ए का जो आउटपुट है उसमें से 37,000 आया था उसका आंसर, उसमें से 80% वो आगे ट्रांसफर कर दे, 20% खुद सेल कर दे. यहाँ पर खुद सेल कुछ भी नहीं कर रहे हैं. जितना भी हम अगले प्रोसेस को ट्रांसफर कर रहे हैं, वी आर ट्रांसफरिंग बाय एडिंग प्रॉफिट. बीच में कुछ इंफॉर्मेशन दी आपको, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, वेजेस. आफ्टर दैट स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. स्टॉक इन प्रोसेस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ओनली. मतलब उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स वगैरह ऐड नहीं हो सकते. फिर द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइस एट विच इट इज रिसीव्ड फ्रॉम प्रोसेस जेड. ठीक है, सो हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. सो लेट मी डिस्कस द इशू इन डिटेल फर्स्ट. ठीक है, मैं पहले से प्रोसेस एक्स अकाउंट बनाऊंगा. ठीक है, देन आई विल गिव सम टाइम एंड देन फिर आप लिखेंगे उसको. बीच में लिखना मत, फॉर्मेट आप सिर्फ बना सकते हो. प्रोसेस एक्स November 2008, 12 marks. इसमें क्वांटिटी का कॉलम नहीं करते. 2 मिनट रुको, लेट मी प्रिपेयर द फॉर्मेट ऑल्सो. So here your columns will be cost, profit and total. It is cost, profit and total. लेकिन just concentrate. Let me solve the issue for you. क्या दिया आपको? पहले से प्रोसेस एक्स को कॉन्सेंट्रेट करें. देखिए प्रोसेस एक तो सबसे पहला प्रोसेस है, इसलिए इसमें जो कुछ भी है इसको तो कहीं किसी से आता नहीं है. ठीक है, सो हियर व्हाट इज गिवन टू यू. प्रोसेस एक्स में देयर इज ओपनिंग स्टॉक रुपीज 15,000 एट इट्स कॉस्ट ओनली. सो उसमें आप देखिए नीचे जो बिल्कुल दिया ना, इसमें आखिरी में इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक. इसमें कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि पहला प्रोसेस है. सो हियर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, its cost is 15,000, there is no profit, so total it is 15,000. Then now process X में material is 80,000, so here to material 80,000, there is no profit included in that material, 80,000. Then wages, so to wages cost incurred is 1,25,000. This is about 1,25,000. It is given that stock in process is valued at prime cost. Prime cost में क्या होता है आपका? It is material plus wages add direct expenses. अगर कुछ है तो जो आती है वो prime cost आती है. उसके बाद हम overheads add करते हैं, then we get the factory cost. यहाँ पर valuation क्या है stock का? At its prime cost only. इसलिए आपको क्या करना होगा? Here you please take the total. This comes to 50 plus 80 plus 125.
2,20,000, दिस इज 2,20,000. यहां पर आपको क्या दिया है? क्लोजिंग स्टॉक दिया है. देखो प्रोसेस एक्स का क्लोजिंग स्टॉक, सिंस दिस इज एट प्राइम कॉस्ट, तो यहां से हम लोग पहले क्या करेंगे? लेस क्लोजिंग स्टॉक, इट इज 20,000. इट इज 20,000. सो यह है आपका कितना? 2 लाख. दिस इज 2 लाख. देखिए स्टॉक हम हमेशा क्रेडिट में लेते हैं, क्लोजिंग स्टॉक, बट दिस टाइम क्योंकि हमको प्रॉफिट का वर्किंग भी करना है, एंड सिंस दैट स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट, है ना, तो इसलिए मैंने उसको यहाँ पर इसे, ये जो हमारी प्राइम कॉस्ट है उसी में से मैंने लेस कर दिया. देन एड फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. कितने हैं वो? 96,000. मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स 96,000. 96,000. सो क्या होगी टोटल कॉस्ट? 2,96,000. 2,96,000. अब आप ट्रांसफर कैसे करते हो? देखो, the output of process X and Y is transferred to next process at profit 20% each on transfer price. 20% on transfer price. मतलब ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, ये आ गई हमारी टोटल कॉस्ट, और प्रॉफिट हमारा 25% ऑन 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस. इसका मतलब कॉस्ट का 25%. तो कितना आएगा प्रॉफिट? 74,000. सो दैट प्रॉफिट इज आपका 74,000. तो यहां पर लिखा जाएगा एज टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. यह आएगा आपका टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. 74,000. 2,96,000 का 25%, 74,000. So in this way, this total, यह रहेगा आपका कॉस्ट इज 296, your profit is 74. So total मिला के हो गया आपका 3,70,000. So this will be transferred as by process Y account. Cost 2,96,000. It is 74,000 and 3,70,000. Is it? So ये जाएगा आपका प्रोसेस Y को डेबिट. Clear? Just write down this much. So ये बन गया. मेरे अकाउंट थोड़ा पोलियो हो गया, सीधा हो गया. ओके नाउ, हाँ बोलो. कौन सा वाला नहीं समझा आपको? सीधा बताएगी. कुछ भी नहीं समझा सर, फिर से बता दो. सिंपल सी बात. ओके वेरी गुड. क्योंकि और भी 2 प्रोसेस करने आगे, लिख के लिया कम से कम. ओके सी वेरी फर्स्ट. अब देखिए यहां पर दिस प्रोसेस इज मेकिंग द ट्रांसफर बाय एडिंग इट्स ओन प्रॉफिट. ठीक है. सो हियर
हमने जो कॉलम्स किए दैट इज कॉस्ट, प्रॉफिट एंड टोटल. अब इसके पास ऑलरेडी जो स्टॉक है इट इज एट कॉस्ट, क्योंकि इनको तो पहले किसी से मिला हुआ नहीं है. सो दिस 15,000 इज कॉस्ट, 80,000 मेटल कॉस्ट, 1,25,000 के वेजेस कॉस्ट. ये हो गई आपकी प्राइम कॉस्ट. दिस इज व्हाट योर प्राइम कॉस्ट. ठीक है. नॉर्मली आप देखेंगे हम जब स्टॉक का वैल्यूएशन करते थे तो हम लोग पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते थे, उस तब तक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालते वक्त तो हमारे पास प्राइम कॉस्ट आती, फिर उसमें आपके फैक्ट्री और ऐड हो जाते, फैक्ट्री कॉस्ट आ जाती है, फिर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स हम लोग ऐड करते थे, देन वी गेट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और फिर वहां से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक निकालते हैं. उस स्टेज पर हम लोग वैल्यूएशन करते हैं. लेकिन यहाँ पर उन्होंने जो वैल्यूएशन किया है इट इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट ओनली. गॉट इट. इसका मतलब है कि जो आपकी 2,20,000 जो आपकी प्राइम कॉस्ट है, इसमें डायरेक्टली आप फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करके आपकी टोटल कॉस्ट आएगी. ठीक है. ये 2,20,000 दिस इज व्हाट योर कॉस्ट इनकर्ड, डायरेक्टली मैं 96 ऐड कर दूंगा, ये की मेरी फैक्ट्री कॉस्ट, और इसके ऊपर अगर मैं प्रॉफिट ऐड कर दूंगा सो दैट विल बिकम माय ट्रांसफर प्राइस. बराबर है. 2,20,000 इज माय कॉस्ट इनकर्ड, फैक्ट्री ओवरहेड दिस इज वो ऐड कर दूंगा, वो बन जाएंगे मेरी टोटल कॉस्ट, फिर उसके ऊपर प्रॉफिट ऐड कर दूंगा, आई विल गेट ट्रांसफर प्राइस. लेकिन मैंने सबके सब यूनिट थोड़ी ना ट्रांसफर किया, मैंने 100% थोड़ी ना ट्रांसफर किया है. कुछ मेरे पास स्टॉक है एंड दैट स्टॉक इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. मतलब ये जो मेरे पास स्टॉक है ना 20,000 का, दिस इज वैल्यूड एट प्राइम कॉस्ट. इसमें फैक्ट्री ओवरहेड इंक्लूड ही नहीं है इसके अंदर मेरे. इसलिए मैंने क्या कर दिया, जो मेरी प्राइम कॉस्ट है उसमें से प्राइम कॉस्ट वाला स्टॉक मैंने पहले लेस कर दिया. सो जो मैंने ट्रांसफर किया उसकी ट्रांसफर प्राइस, उसकी कॉस्ट, उसकी प्राइम कॉस्ट. जो हमने अगले प्रोसेस को ट्रांसफर किया उसकी प्राइम कॉस्ट, और वो जो प्राइम कॉस्ट है उसमें पूरा का पूरा ओवरहेड्स आपका ऐड हो गया. So you will get the total cost of transfer 2,96,000. Are you getting here? And then you are adding profit 74,000. So process X account debit to P&L. बाद में जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे हम लोग, उस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ऑटोमेटिकली क्रिएट आएगा बाय प्रोसेस X 74,000. Is this clear? So here cost and profit, this taken together, what we transfer to process Y. I hope this is clear. चलिए, now please prepare process Y account. अब आप मेरे साथ में कर सकते हैं, इतनी तो डेयरिंग आई होगी. अब प्रोसेस Y यह बना दूं, बैठ जाएगा. ठीक है. प्रोसेस Y account. तो सचिन सिर्फ ये प्रोसेस वाई को हाईलाइट करना. ठीक है. चलिए. सो हियर इन द प्रोसेस ये मेरा कॉस्ट, प्रॉफिट, टोटल, कॉस्ट, profit, total. Now very first this process Y is having the opening stock of 27,000 और उसमें आपको क्या दिया देखो, inter process profit included in opening stock is 4,000. So total stock जो Y के पास है ना opening में it is 27,000. So here to balance brought down, आप लिख सकते हैं मेरे साथ साथ में everyone, actual virtual दोनों, it is total 27,000. This includes 4,000 profit. मतलब जो स्टॉक Y के पास है उसकी कॉस्ट कितनी है 23,000. ठीक है. देन अभी यहां पर सबसे पहले प्रोसेस X से आया, प्रोसेस X ने जो क्रिएट किया ना बाय प्रोसेस Y, वो प्रोसेस Y को डेबिट होगा टू प्रोसेस X अकाउंट, टू प्रोसेस X अकाउंट 2,96,000.
In that 74,000 is the profit and 3,70,000 is the total. मुझे बताइए प्रोसेस Y के लिए कॉस्ट क्या है? 3,70,000 which includes process excess profit 74,000. ठीक है, प्रोसेस Y के लिए तो जितने में है वही उसकी कॉस्ट है. ठीक है, देन टू मटेरियल 65,000, इसका अपना मटेरियल लग गया. टू मटेरियल 65,000 इन द कॉस्ट कॉलम, प्रॉफिट में कुछ भी नहीं आएगा. 65,000. देन टू मटेरियल हो गया. देन टू वेजेस 1,08,000. 1,08,000. अभी मैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स यहां पर ले लूंगा तो फिर मेरी फैक्ट्री कॉस्ट बन जाएगी. लेकिन पहले मैं क्या लूंगा यहां पर, इसकी अपनी प्राइम कॉस्ट निकालूंगा, उसमें से जो स्टॉक एट प्राइम कॉस्ट है वो लेस किया जाएगा. सो प्लीज राइट डाउन प्राइम कॉस्ट. मैं प्रॉफिट टोटल करके देता हूं आपको 78,000. इधर के इधर कॉस्ट कितना, 4,92,000. सो टोटल इज 5,70,000. 5,70,000. देन क्लोजिंग स्टॉक. ये देखो, ये हो गई आपकी इस डिपार्टमेंट की अपनी खुद की प्राइम कॉस्ट. वहां लिखते आप लोग प्राइम कॉस्ट. ठीक है, अब लेस होगा क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक. देखिए मुझे एक बात बताइए फिर से एक बार. डिपार्टमेंट वाई की प्राइम कॉस्ट क्या है? 4,92,000 की 5,70,000. इट इज 5,70,000. सो जो स्टॉक आपके पास है वो एट इट्स टोटल कॉस्ट 32,000. गॉट इट? अब इसमें समझने की बात है, वेट लिखो नहीं. अभी जो 32 है, देखिए 570 क्या है? 570 इज में हमारे ही एक डिपार्टमेंट का 78,000 प्रॉफिट है और कॉस्ट कुल मिलाकर जो पिछले डिपार्टमेंट से प्लस जो हमने इनकर की, ऐसा 492 प्लस 78 प्रॉफिट उसके अंदर हमारी टोटल कॉस्ट बन गए 5,70,000. तो जरा ये बताइए, अगर 5,70,000 में 78,000 प्रॉफिट है, 5,70,000 में 78,000 प्रॉफिट है, तो बताइए इस 32,000 में कितना प्रॉफिट है? फाइंड आउट दिस. 4,000. Yes, 4,379. So 32 minus 4,379, 27,621. Write down. This is nothing but your stock reserve. Huh? That is your unrealized profit. आपको याद होगा सीपीटी में आपको कंसाइनमेंट चैप्टर था. द गुड्स एंड एट इनवॉइस प्राइस, देन यू आर वैल्यूइंग दैट स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस, और फिर उसका लोडिंग आप लोग कैंसिल करते थे. बस ये वही बात है ना. फिर ये जो 32,000 जो आपके पास है ये इंक्लूडिंग प्रॉफिट है, तो इसके अंदर का अनरियलाइज प्रॉफिट इज 4,379. सो एट द एंड ऑफ द ईयर जब आप P&L बनाएंगे तो उस P&L में ये आपका स्टॉक रिजर्व आएगा. फिर प्रॉफिट एंड लॉस को बाद में डेबिट करेंगे हम इसको. यस, सो व्हाट इज द नेट कॉस्ट कितनी बच गई यहाँ पर? 492 में से 27 गया, कितना? 4,64,379, 73,621 and 5,48 ना, 38. ओके, 5,38,000. देन टू फैक्ट्री ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स कितने आपके? 72,000. सो दिस इज कॉस्ट में आएगा, प्रॉफिट में कुछ नहीं आएगा. 72,000. सो कीजिए जरा टोटल.
This is 464 plus 70 is 5,36,379, 73,621 and 6,10,000. 6,10,000. Now again ये जो डिपार्टमेंट प्रोसेस Y जो है, it will make the transfer to process Z by adding profit 25% on cost. 20% on transfer price है ना, तो ट्रांसफर प्राइस का 20% मतलब कॉस्ट का 25%. बताइए प्रोसेस Y की कॉस्ट क्या है? इट इज 6,10,000. ये हमारी टोटल कॉस्ट है, ठीक है. तो 6,10,000 का 25%, 20% ऑन इनवॉइस प्राइस मतलब 25% ऑन कॉस्ट. सो इट इज टू P&L कितना आएगा? 6,10,000 का 25% 1,52,500. सो ये प्रॉफिट में करेंगे आप 1,52,500. and then simply do the total. 536,379 और ये 2,26,121, 226,121 and 7,62,500. इसको डबल लाइन करेंगे, मेरे पास स्पेस ही नहीं है, लाइन मारने के लिए जगह ही नहीं बची, ठीक है. सो अब ये जो ये स्टेटमेंट हम लोग ट्रांसफर करेंगे किसे? प्रोसेस Z को. सो क्रेडिट में लिखिए बाय प्रोसेस Z अकाउंट, बाय प्रोसेस Z 536,379, 226,121 and 762,500. अब बड़ा साहब इसकी टोटल करते हैं यहाँ पर. I hope this is clear now. समझ में आ गया? चलिए अब बनाएंगे आप लोग प्रोसेस Z अकाउंट. So प्रोसेस Z में very first two balance brought down. प्रोसेस Z में it is opening stock है 40,000. So ये आपका टोटल में आएगा 40,000. This includes opening profit is inter process profit included in opening stock is 10,000. इसका मतलब इनके लिए उसकी नेट कॉस्ट 30,000, हालांकि हमें मिला तो 40,000 में ही है. अब जो प्रोसेस Y को क्रेडिट था बाय प्रोसेस Z, ये प्रोसेस Z को सबसे पहले डेबिट हो जाएगा. सो प्रोसेस Z को डेबिट होगा टू प्रोसेस Y अकाउंट 536,379
226 121, so total is 762 500, 762 500. एंड नाउ इसका अपना मटेरियल वेजेस डेबिट कर दें यहाँ पर टू मटेरियल it is 50,000. To wages 92,000. तो यहां हो जाएगी इसकी प्राइम कॉस्ट. So please write down prime cost. Is it 944 500? बराबर है क्या? And this is 7,08,379. 7,08,379. 7,08,379 is your cost. 236,121 profit and total is 9,44,500. Then फिर इसमें आएगा टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स. वो कितने? सॉरी यस लेस क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक पहले लेस होगा और क्लोजिंग स्टॉक दिया है आपको कितना? 39,000. दैट इज योर 39,000. अगेन सी दैट 944,500 में 236,121 प्रॉफिट है. इस 944,500 में 236,121 प्रॉफिट है. तो हाउ मच इन दिस 39,000? 9,71550. So 39 minus 9,070 is 29,250. 29,250. So बताइए इननेट क्या आएगा फिर अब यहाँ पर? 129. 679 129. This is 226,371 and 9,05,500. 9,05,500. Got it? Then फिर इसमें होगा आगे टू मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स जो कि आपके 66,500 एट कॉस्ट ओनली. 66,500. So do this total. It is 7,45,629 to 26,371. And this will become 9,72,000. Is it? 9,72,000. अब इसमें ये प्रॉफिट ऐड किया जाएगा. सो टू P&L और ये जो प्रॉफिट आएगा इट इज 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस है ना. मतलब कॉस्ट का 1/3. सो 9,72,000 का 1/3 3,24,000. Do the total. 7,45,629. This is 5,50,371. 12,96,000. और ये आपका जाएगा किसे? फिनिश गुड्स को. सो बाय फिनिश गुड्स. बाय फिनिश गुड्स अकाउंट. It is 745,629, 550,371,
and 12,96,000. 12,96,000. Is it? क्या आवाज है? तो डाउटफुल देख रहा है. So this is what transfer to finished goods. ठीक है. Now in this problem we have to prepare finished goods account also. So please open finished goods account. It is opening stock is 45,000. So this is opening stock is 45,000. In that inter-process profit included in opening stock is 20,000. So इसकी net cost होगी आपके लिए 25,000. Then फिर process Z से जो credit हुआ ना वो यहाँ debit हो जाएगा to process Z account. $745,629. $550,371. 12,96,000. अब ये तो फिनिश गुड्स है, इसमें कोई फिर से आपका मटेरियल लेबर ओवरहेड्स वगैरह कुछ ऐड होना नहीं है. सो जस्ट डू द टोटल. $7,70,629. This is 5,70,371. And this is 13,41,000. 13,41,000. And here sales of the finished stock during the period was rupees 14 lakh. Total जो हमने सेल किया it is for rupees 14 lakh में आपका सेल हो गया. So here simply we can say, इसको हम लोग क्रिएट कर दें यहाँ पर by sales कितने वो हमारा 14 लाख में सेल हो गया. तो यहाँ से आपको डायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा. देखो सी हाउ इट विल बी. जस्ट अ मिनट. मैं फिनिश गुड्स को क्रिएट कर दिया यहाँ पर सेल्स, ताकि यहाँ पर ही आपको प्रॉफिट मिलेगा. ईच प्रोसेस एंड दिस फिनिश स्टॉक इज योर प्रॉफिट सेंटर. तो इसका प्रॉफिट आपको यहीं पर मिलेगा. सो हियर अब देखो ये जो 14 लाख है, 14 लाख, this is what 14 lakh. So this difference. अरे एक मिनट, इसका क्लोजिंग स्टॉक है ना, सॉरी. अच्छा बीच में स्पेस है ना मेरे पास. स्टॉक कितना है 50,000. हाँ एक मिनट ठीक है. सेल्स लिखा होगा आपने 14 लाख, नो प्रॉब्लम. बट इसका स्टॉक लेस करना रह गया मेरा. सो लेस क्लोजिंग स्टॉक इट इज 50,000. तो जरा देखिए 13,41,000 में 5,70,371 प्रॉफिट. सो व्हाट इज द प्रॉफिट इन दिस 50,000? हाउ मच?
21,267 is the profit, is it? So the difference is 28,733. 28,733. और फिर देखिए यहाँ क्या बचता है. $7,41,896. This is what your 5,49,104 and 12,91,000. Is it? So this is what your sales 14 lakh, this 14 lakh. I am taking here 14 lakh. अब इसमें बात आप समझिए, बात को देखिए. ये जो 14 लाख है, जो हमने टोटल सेल किया उसकी टोटल कॉस्ट 12,91. सो दिस 14 लाख ऑन 12,91, व्हाट दिस रिप्रेजेंट्स? कितने में सेल किया आपने टोटल? 14 लाख में. व्हाट इज योर टोटल कॉस्ट फॉर द फिनिश गुड्स? 12,91. यू सोल्ड इट फॉर 12,91,000. यू सोल्ड इट फॉर 14 लाख. द डिफरेंस ऑफ 1,09,000 ये क्या है? ये प्रॉफिट है. सो दिस इज 1,09,000. ये मेरा प्रॉफिट कॉलम में आएगा 1,09,000. सो हियर आई विल से 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. इज दिस क्लियर? सो अब क्या कर दो, बस ये 2 कॉलम की यहां से टोटल जो है वो यहां लेकर यहां और यहां से यहां आएगी. अब समझ मैंने कहां से क्या क्लोज किया है. मैंने पहले सेल्स लिखा 14 लाख, 14 लाख, दैट 14 लाख. 14 लाख में से 12,91 गया, दिस इज 1,09,000. ये मेरा प्रॉफिट है, वो मैंने प्रॉफिट कॉलम में लिया. अब मैं ये 2 कॉलम की टोटल यहां पर लेकर सेल्स में जाएगी. सो हियर 7,41,896, उसमें तो कुछ ये नहीं है. एंड दिस इज 6,58,104. This is 658,104, 741,896, 741,896 and 658,104. जो कुल मिलाकर हमने सेल किया वो 14 लाख. That includes profit 658,104. Total cost is 741,896. Is this clear? अब आपको क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है. सो मैं जरा ये जो प्रोसेस एक्स अकाउंट है इसको रफ करके यहां पर कर लेता हूं. प्रोसेस एक्स अकाउंट आपका बन चुका है पहले से. एक बार पूरा दिखा दे. यहां तक क्लियर है ना सबको? सारे अकाउंट्स बन गए. नाउ प्लीज ओपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. और इसमें सिर्फ आपके रेगुलर अकाउंट बनेगा. ये कॉस्ट एंड प्रॉफिट वाला ऐसा अलग अलग नहीं करना, सिंगल कॉलम. प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अब आप देखिए, अब तक ये जो तीनों प्रोसेस में एंड इवन फिनिश गुड्स में आपने डेबिट में लिखा देखो 2 P&L. तो ये प्रॉफिट एंड लॉस को आएगा क्रेडिट. सो राइट डाउन फॉर ऑल दी प्रोसेसेस P&L को क्रेडिट आएगा. बाय प्रोसेस एक्स अकाउंट. वो कितना था? अभी वो अकाउंट मेरे पास नहीं रहा. 74,000. सो बाय प्रोसेस एक्स अकाउंट 74,000. बाय प्रोसेस वाई अकाउंट. सचिन सिर्फ इतना अकाउंट चाहिए मुझको. 1,52,500.
बाय प्रोसेस Z account 3,24,000 by finished stock account 1,09,000 1,09,000 और ये जो भी हमारे अनरियलाइज प्रॉफिट्स है जो हमारे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड थे अनरियलाइज प्रॉफिट, तो क्लोजिंग स्टॉक और जो ओपनिंग स्टॉक इसके आपको अनरियलाइज प्रॉफिट दिए, ओपनिंग स्टॉक में कितना कितना इंक्लूड आपको दिया हुआ है। जैसे कि देखिए प्रोसेस एक्स में तो कुछ नहीं था, लेकिन प्रोसेस वाई में जो ओपनिंग स्टॉक था उसमें कितना प्रॉफिट था इंक्लूड 4,000, प्रोसेस जेड में कितना इंक्लूड था 10,000 एंड फिनिश स्टॉक में कितना था 20,000। सो ये जो आपका ओपनिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व होता है, ओपनिंग स्टॉक का स्टॉक रिजर्व आपको पी एंड को क्रेडिट में लेना पड़ता है बाय स्टॉक रिजर्व, ब्रैकेट में लिख के रखे ओपनिंग स्टॉक, और जो क्लोजिंग स्टॉक का जो स्टॉक रिजर्व होता है वो आपके डेबिट में आएगा, दैट इज योर अनरियलाइज प्रॉफिट। वो प्रॉफिट अब तक आपका रियलाइज हुआ ही नहीं है, वो स्टॉक में इंक्लूड आपका प्रॉफिट है, सो दैट प्रॉफिट इज नॉट येट रियलाइज, सो इट इज रिक्वायर्ड टू बी कैंसल। सो क्लोजिंग का जो होता है वो आपके डेबिट में आता है टू स्टॉक रिजर्व। क्लोजिंग स्टॉक वाला। तो चलिए सबसे पहले ओपनिंग में कौन कौन था, देखिए आप प्रोसेस वाई में इट वाज 4,000, प्रोसेस जेड में 10,000 और फिनिश स्टॉक में 20,000। कितना है टोटल 34,000, इज इट। और फिर जो हर एक के पास जो क्लोजिंग स्टॉक था उसमें जो प्रॉफिट इंक्लूड था, क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड था, अब देखिए इवन प्रोसेस एक्स में जो आपने प्राइम कॉस्ट लेस की तो उसमें कोई प्रॉफिट नहीं था शायद से, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट पहले से इंक्लूड नहीं है, बराबर ना। लेकिन प्रोसेस वाई अगर आप देखेंगे तो प्रोसेस वाई का जब हमें क्लोजिंग स्टॉक लेस किया 32,000, दैट इंक्लूड्स प्रॉफिट कितना 4,379। सिमिलरली प्रोसेस जेड में जो 30,000 स्टॉक था उसमें प्रॉफिट था 9,750 और जो फिनिश स्टॉक 50,000 उसमें भी प्रॉफिट इंक्लूडेड 21,267। ये आपके पीएनएल को डेबिट आ जाएगा। सो 4,370 ये प्रोसेस वाई का, देन हियर जेड का 9,750 एंड फिनिश गुड्स का 21,267। 35,396. Yes. Close this and give me the net profit. $6,58,104। आप देख सकते हैं आपको जो फिनिश स्टॉक है, आप देख सकते हैं ये आ गया सब 658,104। आप देख सकते हैं हमने जो फाइनल सेल किया वो 14 लाख है, प्योर कॉस्ट हर एक डिपार्टमेंट की 741,896 एंड वी गेट द नेट प्रॉफिट सभी का मिलाकर कितना है 658,104। क्लियर सबको, समझ में आ गया? यस। सो दिस इज व्हाट योर प्रॉफिट प्रॉब्लम ऑन इंटर प्रोसेस प्रॉफिट। क्लियर है? एक बार आप जरा मैं आपको 5 मिनट देता हूं, ठीक है? आप एक बार जरा प्रॉब्लम पढ़ के कौन से अकाउंट्स आपने क्या क्या किया, जस्ट गो थ्रू इट। कोई डाउट है तो पूछ ले, पक्का? ठीक। जस्ट रीड द प्रॉब्लम अगेन एंड जरा देखो हमने कैसे कैसे लिखा है उसको। जो अनरियलाइज प्रॉफिट होता है, एक बार फिर से बता दूं, अनरियलाइज प्रॉफिट जो होता है, जो ओपनिंग स्टॉक का अनरियलाइज प्रॉफिट जो कि इस साल में रियलाइज हो जाता है, वो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट करते हैं। और जो क्लोजिंग स्टॉक में जो प्रॉफिट इंक्लूड है, जो क्लोजिंग स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूड है, वो इस साल हम तो रियलाइज नहीं हुआ, सो हम लोग कैंसिल करते हैं, इसलिए वो आपके P&L को डेबिट में आता है। ठीक है? ये कंसेप्ट आपके
when we'll discuss that branch account and departmental account in group 2 advanced accounts, तब clear हो जाएंगे और भी, ठीक है. बट अभी तब इतना ध्यान रख सकते हैं कि जो भी अनरियलाइज प्रॉफिट है ओपनिंग वाला है तो क्रेडिट में लेना है और जो क्लोजिंग स्टॉक वाला है वो डेबिट में लेना है, ठीक है. पूरा दिखा दे सचिन. फर्स्ट टाइम इस टाइप का काउंटिंग करें तो थोड़ा अजीब सा लगता है, लेकिन जब 2-3 प्रॉब्लम हो जाएंगे तो आप ही कहेंगे सर आप फ्री टाइम पास कर रहे हैं. और 3 प्रॉब्लम कराऊंगा तो उसके बाद ये बिल्कुल ईजी हो जाता है, ठीक है. सो थिंग्स विल बिकम सिंपल बट देन व्हाट यू रिक्वायर्ड इज प्रैक्टिस ऑन, ठीक है. सो क्लियर हो गया सबको. चलिए कम टू द नेक्स्ट नंबर 33.